हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज़ ए प्लंजर 10 cm diameter and a stroke of length 200 mm. The center of the pump is 4 meter above the water level in the sump and 14 meter below the level of water in a tank to which water is delivered by the pump. The diameter and length of suction pipe are 40 mm and 6 meter, while of the delivery pipe are 30 mm and 18 meter respectively. Determine the maximum speed at which the pump may be run without separation. If separation occurs at 7.848 Newton per centimeter square below the atmospheric pressure, take atmospheric pressure at 10.3 meter of water. So separation occur below the atmospheric pressure. Okay friends. So given data is single acting reciprocating pump we are talking about here. Single acting reciprocating pump and plunger dia. Plunger dia has given 10 cm equal to 0.1 meter and here stroke length 200 mm or 0.2 meter. Suction head HS equal to 4 meter and delivery head equal to 14 meter. Because it is saying that 14 meter above the water level means जो center of the pump है वो 40 meter above है. It means जो suction head है 4 meter है and the sump and 14 meter below the level of the water in the tank. So tank से कितना नीचे है 14 meter है. So delivery head कितना हो जाएगा 14 meter. Suction pipe dia DS equal to 40 mm equal to 0.04 meter and suction pipe length equal to 6 meter. Okay friends, now here delivery dia has given 30 mm 0.03 meter and delivery length LD equal to 18 meter. Separation pressure has given 7.848 Newton per centimeter square below atmospheric pressure, or we will convert into head. So separation pressure head कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P by rho G. So here rho we are using water. So वाटर के केस में डेंसिटी हो जाएगा 1000 kg per meter cube. So 7.848 into 10 to the power 4. जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 to the power 4 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 into 10 to the power -2 मीटर. ओके फ्रेंड्स. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो सेपरेशन प्रेशर हेड होगा वो 8 मीटर बिलो द एटमॉस्फेरिक होगा और एब्सोल्यूट प्रेशर हेड में कितना आ जाएगा. तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड में से माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर हेड मिल जाएगा. ये होगा 10.3 - 8 मीटर एब्सोल्यूट और 2.3 मीटर एब्सोल्यूट इट विल कम. ओके फ्रेंड्स. Now here suction and discharge both pipe length has given, so we will calculate here friends. Suction dia and suction pipe has given and delivery dia delivery pipe has given, so we will calculate both side. Pressure head due to acceleration we will calculate. So friends, this is the case here. This is the reciprocating pump setup. This is the suction pipe, this is the delivery pipe, and this is the cylinder, piston rod, connecting rod, crankshaft. Here this is the suction valve, delivery valve. Here friends, it is saying that यह जो है HS इक्वल टू 4 मीटर बिलो है एंड 14 मीटर जो है टैंक से नीचे है सेंटर ऑफ द पंप. And that length has given, LD length has given 18 meter and dia is equal to given 0.3 meter and here 6 meter suction length and dia is equal to 0.04. Now friends, we will calculate
because here suppression pressure we already calculated 2.3 meter absolute. Now we will check it what effect will come due to acceleration in suction side and due to acceleration in delivery side. Okay friends, now speed of pump without suppression during suction side we will calculate. So friends, we know that this is the indicator diagram. This is the drawn between pressure head and stroke length. This is the start of the suction stroke, means when piston is here, and this is the end of the suction stroke when piston is here. So this is the suction stroke. Okay friends, now here because of the suction in the pipe क्या होगा, this is the suction head below atmospheric, this is the atmospheric pressure line 10.3 मीटर. सो फ्रेंड्स, जब सक्शन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर क्या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा. सो दिस इज द सक्शन हेड एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हेड जनरेट होगा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन हेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन एंड हियर द वैल्यू ऑफ दिस HAS इक्वल टू नेगेटिव. सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, दिस इज HAS, द वैल्यू हैज नेगेटिव, सो इट विल माइनस इट हियर. ओके फ्रेंड्स, सो जो क्या होगा, सप्रेशन होगा एट द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा, सप्रेशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होगा. सो दिस HAS प्लस HAS वैल्यू हैज़ गिवन हियर 8 मीटर ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर. दिस सप्रेशन हेड इज 8 मीटर बिलो द एटमॉस्फेरिक. इट मीन्स this value has come friends 8 meter below the atmospheric. It means this value HS plus HAS value is equal to 8 meter. So this value is the separation head in absolute. This value is the separation head in absolute because we deducted from 10.3 minus 8 equal to 2.3. So this separation head is separation equal to 2.3 meter in absolute. Okay friends, so this is the suppression head in absolute and this is the suppression head below the atmospheric. Okay friends, now at the suction point here you see during we know that जो possibility of suppression होगा at the beginning of the suction stroke होगा in the suction stroke में. So pressure head in the cylinder कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस HAS प्लस HAS सप्रेशन हेड हो जाएगा. सो दिस इज द सप्रेशन हेड क्या हो जाएगा, दिस इज द एटमॉस्फेरिक हेड माइनस समेशन ऑफ दिस 2 पॉइंट. सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक हेड माइनस HS प्लस HAS, दिस इज द सेपरेशन हेड. ओके फ्रेंड्स, नाउ सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा, H सप्रेशन इक्वल टू H ATM माइनस HS प्लस HAS. वी नो डैट. सो जो सेपरेशन हेड की वैल्यू है वो 2.3 मीटर है एंड H ATM की वैल्यू है 10.3 मीटर माइनस HAS की जो वैल्यू है, जो सक्शन हेड है वो 4 मीटर है, जो सक्शन हेड है वो 4 मीटर है. सो यहाँ से फ्रेंड्स जो HAS होगा हमें HAS की वैल्यू मिल जाएगी. सो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू पता है, दिस वैल्यू इज 4 मीटर, दिस वैल्यू इक्वल टू सेपरेशन इक्वल टू 2.3 मीटर एंड दिस होल लेंथ इज इक्वल टू 10.3 मीटर. सो फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज द प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन, HAS की वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर. ओके फ्रेंड्स, नाउ हियर वी नो डैट एक्सेलरेशन हेड इन सक्शन साइड क्या होता है, LS/G A/AS R ओमेगा स्क्वायर. सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी नो डैट LS की जो वैल्यू लेंथ ऑफ द सक्शन पाइप है वो 6 मीटर है, G इक्वल टू 9.81. दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द पाइप R ओमेगा स्क्वायर. R इज द क्रैंक रेडियस एंड इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ डिवाइड बाई 2. सो फ्रेंड्स वी पुट ऑल द वैल्यू हियर एंड यहाँ से फ्रेंड्स हमें दिस ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 3.23 रेडियन पर सेकेंड. यहाँ से फ्रेंड्स जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो जो स्पीड आएगा 60 इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो जो सक्शन साइड में जो स्पीड होगा NS होगा वो 30.89 RPM आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड in suction side. Okay friends, this is the maximum speed in the suction side. Now यहाँ पर डिलीवरी लेंथ भी दिया है, तो फ्रेंड्स हम डिलीवरी लेंथ को भी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द डिलीवरी साइड, तो इस ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पीड क्या रख सकते हैं, हम फ्रेंड्स इसको फाइंड करेंगे। तो इस केस में जो क्या होगा, डिलीवरी साइड में क्या होगा कि जो सेपरेशन होगा वो एट द एंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक होता है। ओके फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक। तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस केस में सपोज दिस इज द सक्शन साइड, नाउ वी आर ड्राइंग दिस डिलीवरी साइड। सो फ्रेंड्स दिस इज द डिलीवरी हेड HD इक्वल टू 14 मीटर। नाउ ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्या होगा, प्रेशर हेड जनरेट होगा। प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज द HAD। नाउ दिस इज द प्रेशर डिलीवरी हेड and this is the acceleration head in at the start of the delivery. Now friends we know that यहाँ पर यह पॉजिटिव है बट दिस साइड में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द SD मीन्स डिलीवरी हेड हो जाएगा, दिस इज द डिलीवरी हेड। बट दिस साइड क्या होगा फ्रेंड्स, दिस साइड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ डिलीवरी, बट इट विल गो एट द एंड ऑफ डिलीवरी। क्या होगा, दिस वैल्यू शुड बी विल बी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस हो जाएगा। नाउ इट इज सेइंग दैट सेपरेशन होगा एट दिस पॉइंट। डिलीवरी साइड में सेपरेशन कब होगा, जब दिस प्रेशर जो दिस वैल्यू है वो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ तक आएगा, बिकॉज हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज द सेपरेशन हेड इन डिलीवरी साइड, इट विल आल्सो कम 2.3 मीटर, तभी तो सेपरेशन होगा। सो दिस होल वैल्यू इज दिस HAD वैल्यू इक्वल टू दिस HAD वैल्यू इक्वल टू दिस इज द this value is the HAD value in negative form. Okay friends, now here you see, so friends इस केस में कितना हो जाएगा, जो सेपरेशन हेड होगा वो कितना हो जाएगा, सेपरेशन हेड दिस इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। इट मीन्स जो डिलीवरी साइड में प्रेशर हेड और सेपरेशन हेड होगा, एस सेपरेशन होगा, वो कितना हो जाएगा, HATM प्लस SD माइनस HAD इक्वल टू एस सेपरेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ हियर हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो एस सेपरेशन इक्वल टू सेम आ जाएगा। वी नो डैट सेपरेशन की वैल्यू कितना होता है 2.3, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। HATM की वैल्यू है 10.3, HAD की वैल्यू 14 है और HAD की वैल्यू कितना हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना है। वाई वी आर कैलकुलेटिंग फ्रेंड्स, बिकॉज हम यहाँ से जो है मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर लेंगे इन डिलीवरी साइड कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HAD की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें 22.0 मीटर आ जाएगा। 10.3 प्लस 14 माइनस 2.3 सो इक्वल टू 22 मीटर आ जाएगा। नाउ वी नो डैट एक्सेलरेशन हेड या प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन इक्वल टू LD बाई G A बाई AD R ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हम वैल्यू जानते हैं, LD की वैल्यू 18 मीटर है, 9.81, G की वैल्यू, दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द एरिया ऑफ पाइप बिकॉज दिस इज द डाया ऑफ द डिलीवरी पाइप एंड दिस इज द रेडियस, क्रैंक रेडियस 0.2 डिवाइड बाई 2, R इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू जो है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगा। दिस इज द ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3.28 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ से फ्रेंड्स हमें जो है जो स्पीड आएगा 16 टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो ND की जो वैल्यू हो जाएगी 31.369 RPM। नाउ फ्रेंड्स हमने दोनों साइड से कैलकुलेट कर लिया है, सक्शन साइड का लेंथ दिया हुआ है तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, वो 30 पॉइंट समथिंग आया है। दिस इज फ्रेंड्स, जब हम सक्शन साइड का लेंथ लिए हैं LS लिए हैं, LS एंड DS की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं तो उस केस में जो है
हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा वो 13.89 आ रहा है। एंड जब हम डिलीवरी लेंथ ले रहे हैं LD एंड DD के वैल्यू लेकर के हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 31.369 RPM होगा। सो फ्रेंड्स, जो भी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप होगा वह सक्शन एंड डिलीवरी, सक्शन साइड स्पीड एंड डिलीवरी साइड स्पीड में जो मिनिमम होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो कैविटेशन होगा। सपोज हमने इसको मैक्सिमम स्पीड पंप का कैलकुलेट कर लिया तो ये स्पीड जो है वह सक्शन साइड की स्पीड से ज़्यादा होगा। सो फ्रेंड्स, सक्शन साइड में क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा और कैविटेशन हो जाएगा। सो हम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप कितना हो जाएगा, जो मिनिमम होगा सक्शन एंड डिलीवरी में जो मिनिमम होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एन मैक्स ऑफ द पंप कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द टू साइड, सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड। सो दिस इज द सक्शन साइड वैल्यू एंड दिस इज द डिलीवरी साइड वैल्यू। सो सक्शन साइड की वैल्यू कम है तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है पंप का स्पीड 30.890 RPM मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।